કરું છું દોસ્તો, આપણને સૌને ખબર છે કે આજે સવારે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ સાથે સોમનાથને એક આગવું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનાવી દીધું. આમ તો સોમનાથની જો વાત કરવામાં આવે તો સોમનાથને એટલા માટે પણ યાદ કરવામાં આવે છે કારણ કે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંનો એક સોમનાથ સૌથી પહેલો અને સૌથી પ્રખ્યાત જ્યોતિર્લિંગ છે અને તેના દર્શને માત્ર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી નહીં, ભારત જ નહીં પરંતુ વિશ્વના તમામ લોકો દૂર દૂરથી તેના દર્શન કરવા આવતા હોય છે. એમાં પણ શ્રાવણ મહિનાનો આ સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે સોમનાથ હંમેશાથી ગુજરાતમાં એક પ્રખ્યાત અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. એવામાં જ્યારથી નરેન્દ્ર મોદીએ સોમનાથની કહી શકાય કે અધ્યક્ષતા સંભાળી છે ત્યારથી જ દર વર્ષે અથવા દર સમયે કંઈક ને કંઈકથી નવું કરતા આવ્યા છે. સોમનાથ ઐતિહાસિક રીતે પણ અનેક રીતે મહત્વપૂર્ણ ધરાવે છે કારણ કે આપણને સૌને ખબર છે કે સોમનાથ પર અનેક રીતે પ્રહારો થયા હતા. તેને તોડી પાડવામાં, તેને ધ્વસ્ત કરવામાં કોઈ પણ રીતે કચાશ છોડવામાં નથી આવી, પરંતુ છતાં પણ મહાદેવ પોતાનું સ્થાન બિરાજમાન ત્યાં કરીને બેઠા હોય ત્યારે કોણ તેમને હલાવી શકે? જી હા, અને એ જ રીતે સોમનાથ મંદિર આજે પણ એવું અડીખમ છે. અનેક માન્યતાઓ, અનેક સત અને સાથે જ અનેકો લોકોની શ્રદ્ધા સોમનાથ સાથે જોડાયેલી છે. પહેલાંનું સોમનાથ એટલે આથી 20-30 વર્ષ પહેલાંનું પણ સોમનાથ જોશો અને આજનું સોમનાથ જોશો તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે ઘણી રીતે વિકાસના કાર્યો થયા છે. એમાં પણ આજના વિકાસ કાર્યોની વાત કરવામાં આવે તો વન વે કહી શકાય કે લોકાર્પણ, જે રીતે વોકવેનું એક લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે અને એક 1.5 કિલોમીટરનો ખૂબ જ સુંદર રસ્તો જે સમુદ્ર દર્શનના પણ દર્શન થાય, સમુદ્રના અને સાથે સાથે મંદિરના દર્શન થાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. સાથે સાથે પાર્વતી માતાના મંદિરનું પણ શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યું અને જે રીતે ગેલેરી, આર્ટ ગેલેરી પણ ત્યાં બનાવવામાં આવશે એટલે કે ભવિષ્યમાં આજથી આવનાર પેઢી પણ સોમનાથના ભૂતકાળને સમજી શકે, જાણી શકે એના માટેની ગેલેરી પણ ત્યાં મૂકવામાં આવશે. પરંતુ આ તમામની વચ્ચે આજે આપણે જાણીશું કે માત્ર ધાર્મિક રીતે જ નહીં પરંતુ આજના આ જે પણ આખા મેળાની વાત કરવામાં આવે કે આજના જે પણ પ્રસંગની વાત કરવામાં આવે ધાર્મિકની સાથે સાથે રાજકીય અને પ્રવાસન સ્થળથી પણ જોવામાં આવે તો અનેક રીતે આજનો આ પ્રસંગ મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારે આઈટીવી નેટવર્કના એડિટોરિયલ ડાયરેક્ટર આલોક મહેતાજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તેમની સાથે આપણે સમજીશું રાજકીય, ધાર્મિક અને પ્રવાસન ક્ષેત્રના दृष्टिकोण આજનો આ દિવસ सोमनाथ માટે કેવી રીતે મહત્વનો છે. आलोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े. बहुत ही बड़ा स्वागत है आपका. आप सबसे पहले हम चाहूँगा कि हमारे दर्शक मित्रों को आप बताएं कि सोमनाथ जो हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, न कि मात्र गुजरात बल्कि पूरे भारत को लेके, आज जब पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग से बहुत सारे विकास कार्यों का लोकार्पण किया हुआ है, किस नज़रिए से आप देखते हैं, इसका क्या आपको तात्पर्य दिख रहा है? देखिए जी भाई, बहुत धन्यवाद. मेरा ऐसे कहने का आभार मानूँ छे कहना चाहिए, क्योंकि गुजरात का ये जो महत्व है भारत में ही नहीं है, दूसरे देशों में भी हमारे जितने प्रवासी भारतीय हैं, में, अमेरिका में, मॉरिशस में, फिजी में, इतने देश के लोग भी सोमनाथ को और उस आज ये तो कर आप कह सकते हैं यहाँ से जो गई हुई पीढ़ी है या पहले यदि आप देखें तो ऋग्वेद में जिसका चित्र, पुराण में जिसका चित्र, कहने को क्या है, धार्मिक स्थान तो भारत में जगह जगह हर कोने में आपको मिलेंगे, पुराने मंदिर भी मिलते हैं. सोमनाथ का जो महत्व है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है. इसीलिए अच्छा दूसरा बॉर्डर का है जी, तो 10वीं की तो हम आज बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले भी कई बार उसको निर्माण उसके होते रहे, कई बार कोई भूकंप आया या कोई घटना हुई, लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग में एक है इसका एक धार्मिक महत्व इतना है, इसलिए गुजरातियों का महत्व नहीं इसको मैं मानता हूँ. सोमनाथ तो द्वारका लगा हुआ है, बिल्कुल. आप देखिए सोमनाथ के शिव जी के उसमें भी यदि जो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मथुरा वृंदावन यहाँ से जन्म हुआ, यहाँ कंस को मारा, लेकिन जाके राजधानी में द्वारका में बनाई. बिल्कुल. अब ये ठीक है कि आज के समय में द्वारका वाले यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, गुजरात वाले, जी, इसी के बाद ऐसा हुआ. तो मेरा ऐसा मानना है, बराजी भाई हुए थे पहले, बिल्कुल. तो सोमनाथ का महत्व, अच्छा सरदार पटेल आज़ादी के बाद यदि महत्व देखें, आज की महत्व के साथ तो भावनाओं को देख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अलग विवाद है कि भाई नेहरू जी कहते थे कि पुनर्निर्माण के लिए सरकार को राष्ट्रपति को जाना चाहिए कि जाना चाहिए, हम विवाद की बात बाद में करेंगे. पहले मेरा ऐसा मानना है कि सोमनाथ का ऐतिहासिक महत्व रहा, सांस्कृतिक महत्व रहा, फिर समुद्र की छटा. मैं एक और बात जगह भाई कहूँगा, 1972-73 में गांधीनगर में बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय महाधिवेशन जी जी, और मुझे उस समय जाने का अवसर मिला. और उस समय हमें सरकार की, गुजरात सरकार की तरफ से ही कुछ जो पत्रकारों का दल दिल्ली से था, एक बड़े उसमें मिनी बस में हम लोग सोमनाथ, द्वारका, पूरे राजकोट
जूनागढ़, आज उसके बाद कितना बदल गया है जी जी पिछले 10-15 वर्षों में। जी। क्रेडिट देना चाहिए, चाहे कोई हो। बिल्कुल। हमारे माधव सिंह सोलंकी से भी हम परिचित रहे, केशव भाई से परिचित रहे, जितने मुख्यमंत्री आए, बाबू भाई चिमन भाई पटेल, विवादों वाले जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले 10-15 वर्षों में उसकी सांस्कृतिक जो अस्मिता रही, जो उसका धार्मिक महत्व रहा, जी। और जो उसकी जो भव्यता जो बढ़ी है, फिर दूसरा हमारे आपके लिए नहीं, दुनिया के कोई भी कोने से जो लोग आए तो उन्हें लगे कि हम कितनी सुविधा से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल जो भव्य रूप है, बिल्कुल उसका जो आपने जिसका धार्मिक महत्व है, हाँ। तो इसलिए लोग आते हैं और उसकी दृष्टि से भी आते हैं कि भाई वहाँ से हम द्वारका जा सकते हैं। और समुद्र का आज जो उद्घाटन हुआ है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जी। समुद्र पथ दर्शन का जो एक पूरा जो रास्ता है, वो एक अपने आप में विश्व के लिए भी एक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। बिल्कुल, पर्यटकों के लिए भी एक नया उत्साह एक बन गया है आज के दिन के बाद। खास तौर पे देखा जाए आलोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप समझिएगा कि जिस तरह से आतंकी घटनाएं दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, खास तौर पे इस दौर पे हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो ये अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात है वो काफ़ी चिंतित है। उसी समय इसका लोकार्पण होना सोमनाथ में नई नई चीज़ों का, और वहाँ पीएम मोदी का हर आतंकी घटना का उल्लेख करना कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आस्था को कोई भी आतंकी घटना से कुचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी सोमनाथ में कई सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन सोमनाथ आज भी वैसा है। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने काफ़ी स्मार्टली शिव जी को इसकी क्रेडिट दे दी। पर जिस तरह से कोशिश की जाती है और बताया जाता है कि हम अभी भी इतने स्ट्रांग हैं, हमारी सरकार हो, हम हो, भारत देश हो, या हमारा जो विश्वास हो आस्था के साथ, उसको कोई भी आतंकी चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले गुजरात में अक्षरधाम की जो घटनाएं हुई थी, उसको लेके भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डर, चिंता और विचार थे, लेकिन सोमनाथ में अब ऐसा कुछ डरने की बात नहीं, ये भी एक मैसेज दे दिया गया है। उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ये आपकी बात बहुत सही है जी। कि अफगानिस्तान ये कार्यक्रम तो बहुत पहले से बन जाते हैं। हाँ जी, नहीं हाँ कि कल अफगानिस्तान की घटना 4 दिन पहले हुई तो आज हो गया। बिल्कुल। हाँ, ये है कि उस मौके पर भी उन्होंने नाम नहीं लिया। कई लोग कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक देश का स्टेट्समैन होता है, वो उन चीज़ों को, आतंक चाहे वो मोहम्मद गजनवी का हो या उससे पहले भी जो हमला हो रहा है समुद्र के रास्ते से ही आए, जी, जी। क्योंकि मुंबई का हमला भी तो समुद्र के रास्ते से आया। एब्सोल्युटली यस, मुंबई का आतंक यस नहीं यस था। तो आतंक आस्था का जो शक्ति है, यस, इसको हम कहते हैं शिव की शक्ति या आस्था की शक्ति, जनता की शक्ति, वो जो जोड़ते हैं शिव को, भगवान राम को कृष्ण से, वो जनता के साथ जोड़ते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बात कही, वो पूरी दुनिया के लिए संकेत है कि आप इस तरह के आतंक से, आतंकवादी शक्तियों से, आक्रमण से, तात्कालिक हो सकता है कि आपको लगे कि कब्जा कर लेंगे या कोई चीज नष्ट कर देंगे, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। हमारी भावनाओं को, चाहे हमारी भावना हो और जो आस्था हो, राष्ट्रभक्ति की चाहे कहिए, राष्ट्रवाद की कहिए, धार्मिक भावना कहिए, भारत की संस्कृति को दुनिया में सबसे अधिक है। मैं एक बात जोड़ूंगा, जी जी जी, आप यदि इटली या यूरोप जाते हैं, 700 वर्षों से पुराना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो 7,000 और 7 लाख साल तक की बातें मतलब और अभी भी ऐसा ही है। अभी भी वैसा है। और वो शिवलिंग जी। जिनके भव्य जो रूप सोमनाथ में दिखाई देता है, जी। जैसे मैं महाकाल मंदिर में हम जैन का रहने वाला, मान लो महाकाल है, ज्योतिर्लिंग है। हाँ। आप रामेश्वरम जाते हैं तो वो लगता है बिल्कुल, तिरुपति मंदिर आप देख सकते हो। जी, नेपाल में जाते हैं पशुपतिनाथ, देखा जाए तो ये सब अखंड भारत का हिस्सा बिल्कुल, माना जाता था। बिल्कुल। आज के संदर्भ में नेपाल का अपना अस्तित्व है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये बड़ा आज के समय बहुत ही महत्व है, मैसेज है कि आप आतंक से, अफगानिस्तान में कुछ अभी समय करके आपने कह दिया सत्ता हमने दूसरे को हटा दिया, ये आप अधिक समय नहीं रह सकते हैं। और दुनिया में इस समय आज इसका देखिए, सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। गुजरात को आर्थिक प्रगति का, सोमनाथ देखिए कि इस बात का भी प्रतीक है, जामनगर सबसे बड़ा हमारा जो एरिया है लगा हुआ जूनागढ़, उससे दुनिया में अब पेट्रोलियम की जो सारे हमारी भारत में भी जो प्रगति हुई है, सब कुछ गैस का जो उत्पादन है, तेल बाहर से आकर के रिफाइनरी लगाई गई, जी। इस दृष्टि से भी ये सांस्कृतिक केंद्र है। उसकी सुरक्षा, भगवान शिव आप कहें या जनशक्ति भारत की सुरक्षा कहें, आज के कार्यक्रम का ये बात है कि उन्होंने उसको, अच्छा देखिए, लोग जाते हैं थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, समुद्र के किनारे देखने के लिए। हाँ हाँ, अब इस धार्मिक उसके साथ जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भित्ति चित्र है, बहुत बढ़िया, जो हमारे इसकी सोमनाथ की पुरानी जो उसके हैं पेंटिंग्स के रूप में, करेक्ट प्रकृति करेक्ट, के रूप में, वो कलाकृति भी वहाँ नजर आती है। प्रदर्शनी में नहीं, अभी जो बनाई लगवाई गई है, हाँ हाँ हाँ, ये जो पूरा रास्ता बनाया गया है, जिसका आपने पूरा किलोमीटर बताया, उसमें पूरे ही उस तरह के दर्शन उसके होंगे जो हमारे आप अपने कार्यक्रम में हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि उसका एक अलग महत्व होगा। विदेश के लोग आएंगे, जी, वो हमारी संस्कृति को समझेंगे। करेक्ट।
और उसका आनंद लेंगे कि आपको कहीं दूसरे जाते हैं आप हजारों डॉलर खर्च करके जाते हैं। भारत का भारतीय हमारा पर्यटन इतना बड़ा है कि वही अपने आप में दुनिया की आमदनी। चीन में क्या होता है, चीन के लोग भी वहाँ अपने पर्यटन से बढ़ाते हैं। हमारी प्रतियोगिता किससे है? चीन से है, बड़े मामले में, बड़े देश के मुकाबले। उसके पास भी पुराना कल्चर है। करेक्ट। इससे हम बड़ी ज्यादा, हमारे पास तो सब कुछ समुद्र है, हिमालय है, नदियाँ हैं, अच्छे से अच्छा मौसम है, बिल्कुल। और ये संसाधन। दूसरा, मैं जैसा आपको कहा, पहले वहाँ जाना बड़ी सड़कें छोटी होती थी, दिक्कतें होती थी, ठहरने की सुविधा नहीं थी। अब सब कुछ इतना बदल चुका है। वो मुख्यमंत्री रहे और अच्छा, फिर दूसरा ये सरकार का खर्चा नहीं है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए, आप सत्ता में है, आपने कर दिया। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल पहले से बन गए थे। सोमनाथ ट्रस्ट ने इसमें पैसा लगाया, जनता ने भी पैसा दिया है। और 2010 से जब से वो ज़्यादा एक्टिव हुए इस चीज़ को लेके, हर बार उनकी एक कोशिश रही कि कुछ नया रूप रंग से उनको ज़्यादा सिक्योर किया जाए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति को लेके हो। सोमनाथ के अंदर वो पर्यटकों को लेके हो, वहाँ फैसिलिटी को लेके हो, या धार्मिक तौर पे हो, या श्रावण मास चल रहा है तो उनमें भी एक्टिविटीज़ होती रहती है। बड़े बड़े नेता है, हर सोमवार को आते रहते हैं। तो सोमनाथ अपने आप में एक बड़ा जगह है। सर जी, ये और एक चीज़ है आलोक जी की, एक चीज़ और बताइए कि डिजिटल दर्शन में भी सोमनाथ सबसे आगे है दुनिया में। ये मोदी जी ने कह के अपना जो डिजिटल इंडिया का भी एक उनका जो सपना है, और लोगों को डिजिटली वो कनेक्ट करने की सदा वो कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो कोई भी देखो, पॉलिटिकली चीज़ देखो या नॉन पॉलिटिकली, उनका जो एम रहता है वो इधर भी दिख गया है। तो ये भी मैसेज दे दिया कि सोमनाथ यहाँ पे भी आगे है, और डिजिटल इंडिया का भी जो महत्व है कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है सर। देखिए, ये आपने बड़ा होता क्या है कि हम लोग एक समय में जब ये जिसको कहते हैं क्रांति हो रही थी, कंप्यूटर क्रांति, तो राजीव गांधी ने जब अमेरिका गए तो उन लोगों ने हमको सुपर कंप्यूटर देने मना कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल, आपने जो कहा ना, आज हम पिछले वर्षों में उन्होंने अपने पहले गांधीनगर और गुजरात में किया, फिर जो अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम है वहाँ पर भी आपने देखा होगा पूरी महात्मा गांधी की कथा डिजिटल कराई थी। सोमनाथ को तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाले की संख्या हो गई है डिजिटल के जरिए, उनके दर्शन करना। जैसे तिरुपति के लोग कहते हैं दर्शन वहीं कर लिया, जो नहीं पहुँच पा रहा है वो डिजिटल के जरिए दर्शन कर सके, तो उसके बाद उसका आकर्षण बढ़ता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कब अगले साल का कार्यक्रम बनाऊँ। देशों के लोग तो बहुत पहले प्रोग्राम बनाते हैं। बिल्कुल। दूसरा प्रदर्शनी है, ठहरने की व्यवस्था है, राइट। एक पार्वती मंदिर जो है, देखिए यहाँ पर एक और है, इसको देवी अहिल्या, यस उनका उन्होंने भी वर्षों पहले, बिल्कुल शताब्दी में कहा जी वो महारानी थी, तो उन्होंने यहाँ मंदिर का स्थापना में बड़ा सहयोग। बिल्कुल। अच्छा, पुरातत्व की आपको यदि ध्यान हो, 1 या 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के इच्छा से सोमनाथ ट्रस्ट कहा गया खुदाई करे तो नीचे 3 मंजिला कुछ मूर्ति के अवशेष मिले। बिल्कुल सही बात। अब ये जो बनाया गया है वहाँ पर पुराने पुरातत्व की, और ये हमारा नहीं है, दुनिया के पुरातत्वविद आकर के रिसर्च करते ना जी भाई इतने 1000 वर्ष पहले कैसे नीचे था, वो वापस कैसे ऊपर आ रहा है। तो पुरातत्व की उन सब चीजों को वहाँ प्रदर्शनी में रखा गया है। बिल्कुल। ताकि लोग आए और दुनिया के लोग आकर्षित होते, ब्रिटेन का, जर्मनी का खास करके, वो लोग यहाँ आकर के रिसर्च करना चाहते हैं। जी के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। अच्छा, फिर इसका एक महत्व ये है, आज अडवाणी जी थे वहाँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बनी। जहाँ से राजनीतिक यात्रा सोमनाथ, और इसका नेतृत्व किसने किया था? जी, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल सही सर। सिपह सालार जिसको कहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। जी। सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा बिल्कुल का नरेंद्र मोदी ने ही एक तरह से सामना किया था। जी कहते ना, बिल्कुल। तो श्री कृष्ण जो फ्रंट बैठा हुआ, हाँ, सारथी थे जी। ये भी आज का इसका बड़ा महत्व है। सोमनाथ को उन्होंने एक ऊंचाई तक पहुंचाया है और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी। मंदिर और स्थान को कैसे दुनिया के केंद्र में आए, जो अडवाणी जी, अटल जी या राजेंद्र बाबू, उनको आज याद किया, उनका जिक्र किया। बिल्कुल। महात्मा गांधी का तो खैर पोरबंदर तो लगा हुआ है। जब हम सोमनाथ जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो जूनागढ़ पूरा सौराष्ट्र का ये सर आपने जो बताया आलोक जी की, जिसमें आपने बताया कि किन किन को याद किया, इनमें मोदी जी की हमेशा मास्टर रही है। आपने देखा होगा कि कहीं ऐसे बड़े प्रसंग उन्होंने कभी भी, कोई भी नेता तो छोड़ो, नेता के साथ साथ कोई आम आदमी भी अगर उनसे जुड़ा हुआ, अगर 50 साल पहले भी जुड़ा हुआ है, तो उनके नाम से वो याद कर लेते हैं, और यही उनकी एक स्पेशलिटी रही है।
कि सबको साथ में लेके चलते हैं और हर मेमोरी उनके पास ऐसी ही रहती है कि जिस तरह से वो बयां करते हैं वो इंसान भी खुश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि क्या बात है, पीएम साहब ने याद कर दिया। तो लोगों से जुड़े रहने की उनकी जो ये आदत है ये भी एक बड़ी प्रख्यात रही है। इन बीच में जिस तरह से आपने बताया, मैं खास ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अब अगले साल हम देख रहे हैं कि 2022 में अब कम से कम 1 साल 4 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। गुजरात विधानसभा का जो इलेक्शंस आ रहे हैं और आपको पता है बीजेपी हमेशा बहुत एक्टिव रही है कि 6, 8, 10 महीने बाकी हो तभी से वो शुरू हो जाती है। क्या लगता है सर जी कि जो ये आज की घटना है, हालांकि ये धार्मिक तौर पे ज़्यादा प्रख्यात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे इनको किस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होने की ये बात है। बहुत सारे वो लोग जिनकी श्रद्धाएं जुड़ी हुई है, जो धर्म में आध्यात्मिक है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो उनको आप कैसे देखते हो राजनीतिक स्वरूप से? आप भाई ये आपने अच्छा कहा। हाँ। कि अभी बीच में अयोध्या के कार्यक्रम पिछले 1 जी, साल पहले जी, कार्यक्रम हुए, अभी जी, भी वहाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल निर्माण हो रहा है श्री राम मंदिर का। जी जी मोदी जी उसके लिए भी गए थे। करेक्ट। सरयू के किनारे जो उन्होंने भव्यता हाँ जी, उन्होंने करने का इंतजाम किया, वो भी अगस्त में था। वो भी ये भी अगस्त में तो उनकी प्लानिंग हमेशा जो मैंने देखा है, वैसे बीजेपी को मैं बहुत सालों से देखता रहा हूँ, मोदी के समय, कुशवाहा ठाकरे के समय, लेकिन मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी की थोड़ी प्राथमिकता बहुत पहले से तय हो जाती है। इसको कैलेंडर ना प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जी जी 1 साल बाद हमको क्या करना है, राइट, आप होता अचानक आइए, फायर ब्रिगेड ले आइए, वो नहीं, वो कहते पहले से इंतजाम करिए। करेक्ट करेक्ट इस तरह का जो इंतजाम है, तो राजनीति के लिए भी इसका एक महत्व, इसलिए कि गुजरात की जनता भावुक है। लेकिन आप देखिए सोमनाथ जाने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का या पंजाब का आदमी नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अमृतसर वहाँ का सिख भाई अमृतसर जाता है, जी जी जी, उससे ज्यादा संख्या में पंजाब हरियाणा का आदमी भी वहाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पंजाब बिल्कुल में चुनाव है, हाँ जी, तो सोमनाथ के इस भव्यता के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी। हाँ और जी। उसमें भी ये नहीं कि विकास हो रहा है, बिल्कुल सही, विकास का प्रतीक है। हाँ जी हाँ जी, जो बस लेके जाता है उसकी आमदनी है, रेस्टोरेंट चलाता है, ढाबा चलाता है, बिल्कुल कुछ सामान बेचता है। अयोध्या है, सोमनाथ, ये सब जो केंद्र हैं, इसको आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ना मैं मानता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब, ये इसका महत्व इस बात से है, ये हाँ महत्व जी। इस बात से नहीं कि खाली जाके हाथ जोड़ लिया, नमस्कार कर लिया, जी 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 कुछ जी कर दिया। जी जी, प्रसाद की सुविधा हो, दूसरी सुविधा हो, लोग जाएं उनको लगे नहीं कि हम कहाँ आ रहे हैं। देखिए वेटिकन सिटी जब जाते हैं वो तो व्यापारिक केंद्र लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेटिकन में गया हूँ, जी जी, और मुझे लगता है कि वहाँ ऐसा लगता है कि हर चीज़ बिक रही है। यहाँ पर क्या है कि भावना है। बिल्कुल, और गुजरात का एक विशेषता जो मैं महसूस करता हाँ हूँ, जी हाँ जी, गरीब से गरीब आदमी भी भूखा नहीं रहेगा। बहुत सही कहा, बहुत सही इसलिए कहा। हम जाते हैं तो लगता है सर कितना पैसा जेब में है, यदि नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो। आपको इस चीज़ पे रोकना चाहूँगा, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, वीरपुर एक जलाराम बापा का मंदिर है, जैसे हमने द्वारका की बात की, सोमनाथ की बात करें, वीरपुर में जलाराम बाबा का मंदिर, वहाँ पे भी ऐसा ही है। वहाँ जो प्रसाद मिलता है शाम सुबह, एक इंसान भूखा नहीं सोता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात कही। और जिस तरह से आपने आमदनी की बात की, क्योंकि सिर्फ ये विकास या दर्शन की बात नहीं है, लोगों की आमदनी भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं, स्टे करते हैं, खाना पीना करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये पीएम मोदी जी का एक स्मार्ट मूव है। सिर्फ ये राजनीतिक तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि वाकई लोग अगर खुश है, जो भावुक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा जुड़ रहे हैं और खुशी खुशी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। उसमें कहना चाहिए कि ये कि आज जिस 4 परियोजना का उद्घाटन किया तो मुझे लगता है कि 40 करोड़ 60 करोड़, हाँ हाँ टोटल ये योजना लगभग 250 करोड़ की है सोमनाथ की। ये लोग अभी नहीं पढ़ पाते। जी, और जी, ऐसा नहीं जी। कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य बिल्कुल, सरकार, बिल्कुल। सोमनाथ ट्रस्ट सब है जी, कारपोरेट घराना भी कहता है इसको। अच्छा आपने देखा ना, निर्माण मजदूर को सड़क बन रही है, हाँ जी हाँ जी, उससे उसको काम मिलेगा 1.5 किलोमीटर की है वो, मिलेगा। जी बिल्कुल ये बिल्कुल, चीज़, उसके अलावा भी वहाँ तक बहुत पहुँचने कुछ के है, जी जी लिए हवाई मार्ग से आएगा, बिल्कुल ट्रेवल एजेंसी बिल्कुल को फायदा है। बिल्कुल, वो जरूरी नहीं है गुजरात के आदमी को फायदा होगा, महाराष्ट्र के आदमी को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को होगा, जी राजस्थान को होगा, जी जी, आसपास के जो प्रदेश हैं बिल्कुल। उनको तत्काल, क्योंकि लोग सुबह चलते हैं, हाँ। इंदौर से चला वो हाँ। पहुंच गया, हाँ। बम्बई से चला वो भी पहुंच पहुंच गया। गए, जी। सोमनाथ ऐसा केंद्र हो गया है जी जी जी, जहाँ पर आसपास के प्रदेशों के लोग भी आएंगे, हाँ जी। उनका व्यापार बढ़ेगा, जी वो वहाँ जाके आइडिया लेते हैं। वहाँ टेक्सटाइल मिल, एक जमाने बहुत ही, अब कई तरह के दूसरे उद्योग धंधे आ गए, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई जी, है। जी, जी। कृषि में किसानों की बात करते हैं, जी। नर्मदा पहुंची है, ये मोदी जी का है, मोदी जी ने नर्मदा दिया था। जी जी, एक पुस्तक है नर्मदा पर ही, इंग्लिश में भी और एक हिंदी में। तो मेरा कहना है कि नर्मदा का जो महत्व है वो आंदोलन की तरह नहीं था, जी, राजनीतिक। जी, इससे किसानों, लाखों किसानों को और गाँवों को पानी मिल गया। और उन्होंने जो बोला था, जो कमिटमेंट दिया था, हालांकि बहुत सारे विरोध भी हुए थे उस वक्त। अब हमें पता है, जो 2005-6 की बात करें तो जो परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, आमिर खान खुद उनके अपोज में आ गए थे। मेघा पाटकर की हमें बात
बात पता है, तो बहुत असमंजस भी थी। हाँ जी, तो बहुत बड़े लोग भी उनके विरोध में आए थे, लेकिन वो बहुत ही डेडिकेट थे, बहुत ही कमिटेड थे नर्मदा को लेके, उनके पानी को लेके। और जैसे ही पीएम बने उसके बाद जो स्थितियाँ बदली, लोगों ने महसूस किया कि नहीं, सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लेके एक संदेश था, एक इच्छा शक्ति थी, और इच्छा शक्ति को अच्छे से लोगों तक पहुँचाया गया है। बिल्कुल। देखिए, इसके साथ क्या है, समुद्र के किनारे अभी वो तो इजराइल गए थे कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले। जी जी मुझे एग्जैक्ट क्लियर, वहाँ भी जाके उनका समुद्र का वहाँ से क्या उपयोग हो सकता है, जहाँ वो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके घूमने जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ पर कैसे विकास हुआ, तो समुद्र के किनारे का क्या उपयोग हो सकता है। जैसे नमक, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को बिल्कुल शुरू किया ना, बिल्कुल। तो उस नमक से भी क्या उपयोग हो सकता है, पानी से क्या हो सकता है, जो जन कल्याण के लिए हो। वो चाहे केदारनाथ जाए, वहाँ के रास्ते बन रहे हैं, सही बात और है। सोमनाथ के रास्ते बन रहे बिल्कुल बिल्कुल हैं, और रामेश्वरम के रास्ते और विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि हवाई मार्ग, सड़क मार्ग से जोड़ना, और जैसे आपने कहा था, लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, जी, जी। और दूसरी पार्टी के लोग भी उस विशेष सम्मान, जो फायदा तो उनको मिलता है। ऑफ कोर्स यस। वो ये नहीं कहते कि भाई नहीं है, वो उनके संबंध मैं जानता हूँ। कई लोग बल्कि कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता होते थे कि आप तो मोदी से मिलने चले गए, बिल्कुल, तो आप उनसे मिले हुए, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करेंगे भाई, विकास के लिए तो हमें भी जाना पड़ेगा। हाँ 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 या हाँ। इनको कोई लगता था गुजरात का विकास करना है, जी। सारे अवार्ड गुजरात को तब मिलते थे जब कांग्रेस की यहाँ सरकार होती। बिल्कुल, तभी जाके विकास का मॉडल जो बताया गया है वो ऐसे ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के लोग भी उनको याद करते हैं और करना पड़ता है, और खुल के खुशी से याद करते हैं। ठीक है, आजकल आलोचना होती है राहुल गांधी जी को बैकग्राउंड पुराना नहीं है, इसलिए हम राजनीतिक चर्चा हाँ जी, हाँ करना जी, चाहते हैं। जी, 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 लेकिन जी। हाँ, यही कि उनके मन में एक वो जो धार्मिक आस्था है, हाँ जी हाँ जी मानवीय संवेदना है, जी। और धर्म में तो कहीं लिखा है ईमानदार रहिए, हाँ जी, और भ्रष्टाचार से लड़ेंगे तो दूसरे को कष्ट होगा। बहुत सही है। यदि किसी पर हाँ, इसको कहते हैं हाँ, कि आतंकी से लड़ेंगे, हाँ, हाँ। यदि और किसी को जो उग्रवादी होगा, चाहे वो अक्षरधाम पर करे जी या हमारे यहाँ जम्मू में करे, हाँ जी। तो उसको कैसे प्रतिकार होना है किसी भी कीमत पर। आज आप देखिए, अभी आपने देखा होगा पहले जी। इतनी पूजा की, खुद राहुल गांधी भी वहाँ शिव मंदिर पूजा करने गए थे जी जी श्रीनगर में। जी 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 तो वहाँ इस सुरक्षित ऐसी स्थिति आ गई जी। कि कोई भी पार्टी का नेता जाएगा, हाँ जी। आप और हम भी जाएंगे। बिल्कुल। पिछले साल गया था, हाँ जी वहाँ जितना खुशहाली कश्मीर में हो गई, ये सब सोमनाथ की कृपा में मानता हूँ कि वहाँ भी शिव का मंदिर है सबसे पुराने। बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी ने वो विश्वास पर है, जम्मू में वैष्णो देवी जा रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो सोमनाथ, चूंकि मैं गुजरात का हूँ तो वहीं करूँगा। बहुत सही चुनाव कहा, लड़ा, बहुत सही कहा। वो वाराणसी को कितना विकसित हो रहा है, हाँ, उसकी हाँ। चर्चा कभी और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और माँ गंगा को लेके भी वो कितने कॉन्शियस है हमें पता है। इन सब के बीच में आलोक जी ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि उनका जो विज़न होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया कि जहाँ तक बात सोमनाथ की है, तो ये ऐसा नहीं कि आजकल का प्लान, ये बहुत ही अच्छा होमवर्क कहीं ना कहीं कई टाइमों से हो रहा था। और क्योंकि इसके साथ धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक के साथ साथ पर्यटकों को लेकर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। और क्या था, अब तक ऐसा था कि सौराष्ट्र में कोई आए हैं और चलो मान लो कि 4-5 घंटे के लिए आए और वो निकल जाते थे। अब ऐसा होगा कि सौराष्ट्र आए, गुजरात भी कहीं पे भी आए, तो एक बार सोमनाथ के दर्शन करके निकलेंगे। उस हिसाब से अट्रैक्शन बनाया गया है, तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। देखिए, सरदार पटेल की जो प्रतिभा वाला जो जी, स्थान बनाया गया जी, है, जी, जी। आप देखिए दुनिया में सबसे बड़ी, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूयॉर्क की भी जो है जी, उससे जी। बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्टेचू जी जी जी, वहाँ पे ये आमदनी में बहुत बहुत फर्क हुआ है लोगों को। से सामने नहीं हुआ, तो हाँ इसलिए जी। सोमनाथ का महत्व बढ़ने से। और आप देखो, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आप चाहें तो एक दिन में पूरे स्टेट पे 2 दिन में आप घूम के आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सुविधाएं बढ़ाने का काम भी श्रेय जी है, तो उसकी जनता का भी श्रेय है। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली मोदी जी कैसे कर, वो जनता हर जगह जाते थे पहले भी। हाँ जी हाँ जी हाँ, हवाई सैटरडे संडे उनका होता था कार्यक्रम, क्यों जाकर के पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस एरिया में भी पंचायतों का भी सौराष्ट्र में, हाँ जी। राजनीतिक बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। सौराष्ट्र का राजनीतिक महत्व भी है। बहुत बहुत बढ़िया। उस चुनाव में मतलब एक बड़ी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गुजरात के चुनाव को महाराष्ट्र में भी चुनाव, आप ये मत भूलिए, उसके जी, बाद जी। महाराष्ट्र अभी इससे पर वो भी, जी 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 तो जी जी, महाराष्ट्र के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 में ये 22 में ये होगा, और 23 तक आते आते मध्य प्रदेश और उधर भी चुनाव की स्थिति बिल्कुल आ जाएगी। जी जी मुझे जी लगता है कि दूरगामी ढंग से देखें तो हाँ जी। राजनीति का एक अप्रत्यक्ष लाभ हो, लेकिन हमारी शक्ति बढ़े, सांस्कृतिक, हाँ जी हमारी सामाजिक सौहार्द बढ़े। मंदिर एक काम और सबसे बड़ा करता है, सबको जोड़ता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मंदिर तोड़ता नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मंदिर में कोई दुर्भावना नहीं जी, होती है। और जी, देखिए, जी। वहाँ सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आप कहाँ से, कहने को तो होता है कि हाँ जी हाँ जी लेकिन हाँ कोई जी, रोकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहता है कि कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखता, जब कुछ भी नहीं दिखता है तब वही तो दिखते हैं। और यही श्रद्धा, यही आस्था लोगों की सोमनाथ से भी जुड़ी हुई है। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को लेके। जी तो दोस्तों, जी
દોસ્તો, જે પ્રકારે આ ચર્ચા થઈ, એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે સોમનાથ મંદિરના આજે તમામ વિકાસ કાર્યોની જો વાત કરવામાં આવે તો માત્ર ને માત્ર પર્યટક સ્થળ તરીકે જ વિકસાવવાનો એકમાત્ર એમ નથી. સાથે સાથે સોમનાથનો ઇતિહાસ આવનારી પેઢી જાણે એના માટેની પણ એક કોશિશ હતી. સોમનાથમાં કેવા પ્રકારની શ્રદ્ધાના આસ્થા છે એ પણ લોકો સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ હતી. સાથે સાથે શ્રાવણ માસ તમે જોઈ શકો છો, જે ટાઈમિંગ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે, શ્રાવણ માસમાં આ પ્રકારે લોકાર્પણ કરવું જ્યારે લોકોનો ઓલરેડી ત્યાં ધસારો મોટા પ્રમાણમાં હોય, અને જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી, કોઈને કોઈ રીતે રાજનીતિક અપ્રત્યક્ષ રીતે લાભ તો થવાનો જ છે અને એમાં કંઈ ખોટું પણ નથી. જો એવા સારા કામો થતા હોય જે વિકાસના હોય, જો એવા સારા કામો થતા હોય જ્યાં લોકોની આમદનીમાં સીધો જ ફરક આવતો હોય, જો એવા સારા કામો થતા હોય જ્યાં લોકો જોડાતા હોય, જે પ્રકારે આલોકજીએ વાત કરી કે પ્રાર્થના અને શ્રદ્ધા અને મંદિર એ ક્યારે લોકોને અલગ નથી કરતા, તે લોકોને એક કરે છે. તો સોમનાથ સાચા અર્થમાં ગુજરાત માટે આશીર્વાદ નહીં પરંતુ ગુજરાત માટે એક સપનું હંમેશા રહ્યું છે કે સોમનાથમાં ક્યારે અમે જઈએ, ક્યારે દર્શન કરીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે સોમવાર કરતા હોય, શ્રાવણ માસ કરતા હોય, સૌરાષ્ટ્રમાં ફરવા પણ જતા હોય તો અચૂક સોમનાથની મુલાકાત કરતા હોય છે, દર્શન કરતા હોય છે. ત્યારે દુનિયાભરમાં આજથી સોમનાથ એક અલગ રીતે વિકસશે, અલગ રીતે તેનું નામ થશે અને આશા રાખીએ કે આ જે મેસેજ છે આતંકીઓને લઈને પણ જે તેમણે આપ્યો છે તે કદાચ તમામ લોકો સુધી પહોંચે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘણી યોજનાઓ ગુજરાતને મળે, ગુજરાત સાથે જોડાય અને જે આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિકતા હંમેશા આપણી જોડે રહી છે તેમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આગળ વધતા રહીએ અને તેની સાથે સાથે વિકાસના કાર્યો પણ આગળ આવે તેવી શુભકામના સાથે અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.